میں آپ کو بتائیں گے کہ گیس لوڈ شیڈنگ سے شہر اولیا کے باسیوں کی زندگی عذاب بن چکی ہے۔ ایل پی جی اور لکڑی بھی مہنگی ہو چکی ہے، جبکہ گھریلو بجٹ آؤٹ ہونے لگا ہے۔ ہوٹل اور تندور مالکان گیس کے بجائے لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سردی کی آئی گیس ہی روٹ گئی، ایل پی جی بھی پڑنے لگی شہریوں کی جیب پر بھاری، جبکہ ہوٹل مالکان بھی گیس کے منہ پھیرنے پر لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگی لکڑیوں سے پکائے گئے نان بھی مجبوراً مہنگے بیچنے پڑتے ہیں۔ جی لکڑی تو ویسے بھی بہت مہنگی ہے اور گیس بھی رینج سے باہر ہو چکی ہے، بس کیا کریں۔ چاہے گیس ہو چاہے بجلی ہو، مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے، ایل پی جی ہو یا سوئی گیس ہو، سب ایسی جو ہے نا بہت ہی پریشانی ہے۔ سوئی گیس نایاب ہوئی تو ایل پی جی اور لکڑیوں کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی۔ تندور جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال کی جانے لگیں، جبکہ گیس بندش کے باعث شہری گھر کی بجائے ہوٹلوں کا رخ کرنے لگے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایل پی جی ڈبل ریٹ پر مل رہی ہے، لکڑیاں بھی مہنگی ہیں، ایسے میں لکڑیوں کے دھوئیں سے فضائی آلودگی بڑھے گی۔ لکڑیوں پہ کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ ایل پی جی ہماری قوت خرید سے باہر ہے۔ 220 روپے کلو کے جی، اب بتائیں ہم غریب انسان کہاں جائیں گے، اور کاروبار ہے نہیں آپ کے سامنے۔ گیس تو آ رہا نہیں ہے، زیادہ صبح آتا ہے 5 بجے اور 8 بجے چلا جاتا ہے، پھر دوپہر میں آتا ہے اور بھی شام میں آتا ہے 9 بجے، تو بڑی پریشانی ہے، کھانا شانا باہر سے لینے آنا پڑتا ہے ہر چیز۔ گیس لوڈ شیڈنگ بڑھی تو لکڑیوں کی قیمت کو بھی آگ لگ گئی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان۔ بہاولپور میں فرید گیٹ اور اسے ملحقہ علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ بہاولپور میں بھی سردی شروع ہوتے ہی گیس غائب ہو گئی۔ اندرون شہر فرید گیٹ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں روزانہ 8 سے 10 گھنٹے گیس بند رہنے لگی ہے، جس کے باعث مہنگائی کے ستائے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گیس کا پرابلم بہت زیادہ ہے، پورے دن میں صرف 3-4 گھنٹے گیس آتی ہے۔ صبح جب اسکول جانا ہوتا ہے بچوں نے، ان کی تیاری کے لیے اور ہمارے دفتر وغیرہ جانے کے لیے تیاری کے لیے جو کھانا بنانا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پھر گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ گیس کا مسئلہ فوراً سے فوراً حل کرے۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے نان بھائیوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شادیوں کے آرڈر پورے نہیں کر پاتے، سلنڈر رکھ کر گزارا کرتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ صبح اسکول ٹائم ہوتا ہے بچوں کا، اس کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رات میں جیسے کوئی شادی وغیرہ کوئی آرڈر ہوتا ہے، وہ ٹائم پہ پورا نہیں ہو سکتا، مطلب اس کے باوجود سلنڈر استعمال کرتے ہیں ہم، لیکن گیس کے اندر مطلب کہاں تک خرچہ برداشت کریں، نہیں ہوتا۔ گیس اتنا مہنگا ہے، نہیں افورڈ کر سکتے۔ سوئی گیس حکام کے مطابق سردیوں میں گیس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جس کے بعد شہریوں کو گیس کم ملتی ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس چاہے کم ٹائم کے لیے ملے لیکن پورے پریشر کے ساتھ ملے تو بہتر ہے۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ مظفر گڑھ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری کا کہنا ہے کہ ایل پی جی سلنڈرز کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ سرد ہوتے ہی مظفر گڑھ میں گیس غائب ہو گئی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ کرسچن کالونی، گھوس کالونی اور قائم والا میں صبح 5 سے صبح 8 بجے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ناشتہ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اتنا گیس کا نہیں ہوں، سویرے 5 بجے تو لا کے رات 9 بجے تک سب بھاپ لیندے لکڑیاں تے سلنڈر جلیندے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا جائے گا۔ متعلقہ اداروں کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ ایل پی جی سلنڈر مہنگا ہونے سے پریشانی ڈبل ہو گئی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، سردی کی آمد کے ساتھ ہی بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اب شہر میں آپ دیکھ لیں بھی متعدد علاقوں میں دن کے وقت گیس بالکل ہی نہیں ہوتی۔ لکڑیاں بھی جو مافیا ہے، اس کے لکڑیوں کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا دی ہیں۔ ایک تو وہ بھی گیس کی طرح بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور گھریلو خواتین کا مزید کہنا تھا کہ سلنڈر اور لکڑی جلا کر ناشتہ تیار کیا جاتا ہے، اخراجات بڑھنے کے ساتھ ساتھ وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ پریشان خواتین نے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے، جس کے باعث گھریلو صارفین کو کھانا بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سردیاں شروع ہوتے ہی گیس نے صارفین سے چھٹیاں مانگ لی۔ خوشاب، جوہر آباد، جڑواں شہروں میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ آئے روز گھریلو جھگڑوں سے تنگ خواتین ہاتھوں میں بلز اٹھائے سڑکوں پر نکل آئیں۔ گیس کا بل اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ اور گیس آتی نہیں ہے۔ صبح کو بچے جو ہیں وہ بھوکے جاتے ہیں، دوپہر میں جب وہ آتے ہیں
तब भी गैस नहीं होती, भूखे जाते हैं, घरों में लड़ाइयाँ पड़ रही हैं। भाई सुबह उठी है तो गैस को नहीं होती, गैस तो बिल इतने ज्यादा, लकड़ी महंगी है, बच्चे भूखे लाग हुए। खवातीन का कहना था कि बिल इतना ज्यादा भेज देते हैं लेकिन गैस नहीं देते, बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। खाना ना बनने की वजह से घरों में लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से गरीबों का जीना मुश्किल हो चुका। लकड़ी बेचने वालों ने भी मसनूई महंगाई की अत मचा रखी है। गैस बिल कोई नहीं, गैस आउंदी पई तो घर साढ़े लड़ाई बनती है, तो 1000 रुपए की तो लकड़ है, क्यों नहीं गैस आउंदी पई, बिल जी मंड के मुझे पे तो गरीब बंदा मजदूर क्या करे। साढ़े बच्चे चलते हैं स्कूल, उस वेले भुखे बहते बन रोंदे ते गैस कोई नहीं होंदी, तुसी मेहरबानी करो गैस दी कुछ करो। घरेलू खवातीन कहती हैं कि मीटर तो लगा दिए गए हैं, अब गैस कौन देगा। एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल है, अगर गैस नहीं देनी तो मीटर उतार कर ही ली जाए। गैस की बंदिश और कम प्रेशर ने घरों के चूल्हे ठंडे जबकि दिमाग गर्म कर दिए हैं। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना है कि अगर गैस न दी गई तो सुई गैस ऑफिस का घेराव करेंगी। कैमरामैन उमैर अली के साथ जुल्करनैन हैदर आवान, रोही, खुशाब। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 6% मुनाफा न देने पर हुकूमत के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जनूबी पंजाब वालों, पेट्रोल डलवा लो। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जनूबी पंजाब ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि तमाम छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल पंप्स 25 नवंबर से बंद कर देंगे। एसोसिएशन का मुतालबा है कि डीलर्स मुनाफा में इजाफा किया जाए। हुकूमत ने इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए। पेट्रोल इनको पीछे से सस्ता पड़ रहा है, आगे से महंगा कर रहे हैं। अभी लास्ट जो हुकूमत गुजरी इन्होंने कहा था कि पेट्रोल इतने में पड़ता है, तो अब इनको चाहिए कितने में दें। अब पीछे से अब सस्ता आ रहा है तो इनको भी चाहिए सस्ता दें। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाता, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत की यकीन दहानी पर 5 नवंबर को हड़ताल करने की कॉल वापस ली थी। हुकूमत ने अपनी यकीन दहानी पर कोई अमल दरामद नहीं किया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर अवाम परेशान है। कहते हैं हुकूमत और मुनाफाखोरों की वजह से अवाम पिस कर रह गई है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का नुकसान अवाम उठा रहे हैं। अवाम को पागल बनाया जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत है, हम खुद पीटीआई के सपोर्टर थे बहुत बड़े, लेकिन इमरान खान ने बातें जिस तरह की थी, बहुत बड़ी बड़ी दावे किए थे, वो सब नाकाम रह गए। इसका रोना नहीं कि तुमने किया दिल बर्बाद, इसका रोना है बड़ी देर से बर्बाद किया। होना ऐसे ही है, पिस्ती अवाम है, जो सोर्स रखते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हुकूमत की अच्छी बातें बनाते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स ने वफाकी वजीर हमाद अजहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुलाकात के बाद हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी। मुलाकात में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मुनाफा बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई थी। पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर से हड़ताल की कॉल दी है, जो कि मुअय्यना मुद्दत तक जा सकती है। अगर ये स्ट्राइक लंबी हो गई तो एक बड़ा बहरान मुल्क में पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मौसम मुल्क, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी, तूफान महंगाई ने ट्रैक्टर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। डेरा गाजी खान में ट्रैक्टर्स की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। 2 साल में कीमतों में 4 से 6 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। अनाज उगाने वाले किसान के लिए मसाइल ही मसाइल। पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स की कीमतों को भी पार लग गए। गाड़ियों की तरह ट्रैक्टर्स की डिलीवरी भी ताखीर का शिकार, जबकि बुकिंग साइट पर भी ओन वसूल किया जाने लगा। शोरूम मालिकान का कहना है कि 2 साल में ट्रैक्टर्स की कीमतों में 4 से 6 लाख रुपए तक इजाफा हुआ है। ये जो ना अपना एक तो लेट देते हैं, 4-4 महीने बाद ट्रैक्टर हमें देते हैं, और रेट उन्हें बढ़ा दिए हैं। अब 2 सालों में जो है ना 17 लाख पर रेट चढ़ा गया है। ओन में बेच कर है ना जी, ये 18.5 लाख का ट्रैक्टर बेच कर है। ट्रैक्टर्स की कीमतें बढ़ने से काश्तकार परेशानी से दो चार हैं। 385 मॉडल ट्रैक्टर की कीमत 16,90,500 रुपए हो गई है, जबकि इसी पर 2 लाख ओन वसूल किया जा रहा है। इसी तरह 240 मॉडल ट्रैक्टर की कीमत 11 लाख और 260 मॉडल ट्रैक्टर की कीमत 12,70,000 रुपए तक जा पहुंची है। जबकि शोरूम मालिक कहते हैं कि सेल्स टैक्स बढ़ा तो कीमतों में मजीद इजाफा होगा। जी सुन रहे हैं, मजीद कीमतें में इजाफा होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी सुन रहे हैं शायद इजाफा हो, 17% टैक्स मजीद लागू कर रही है गवर्नमेंट हर चीज पर। ट्रैक्टर्स की डिलीवरी के लिए भी महीनों लंबी तारीखें मिलने लगी। टायरों की वजह से कीमतों में 20 से 40 हजार रुपए का फर्क है। कैमरामैन रेहान अली के साथ रजा मलिक,
रोही, डेरा गाजी खान। किसान एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बिजली की कीमत बढ़ने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने 25 नवंबर को मेपको ऑफिस मुल्तान के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। बिजली की कीमत बढ़ने पर किसान एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। 25 नवंबर को मेपको ऑफिस मुल्तान के बाहर एहतजाजी धरना देने का ऐलान। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी अनवर का कहना था कि किसान बदहाल हो चुका है, ट्यूबवेल टैरिफ में रिलीफ मिलने तक धरना जारी रखेंगे। मेपको चीफ खानेवार रोड पे 25 नवंबर बरोज जुमेरात को धरना देंगे अपने मुतालबात के सिलसिले में, और ये धरना उस वक्त जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमारे मुतालबे नहीं मानेगी। चौधरी अनवर ने कहा कि किसानों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बिजली 5 रुपए यूनिट से बढ़कर 20 रुपए यूनिट हो गई। डीएपी खाद 2400 से बढ़कर 9000 रुपए तक जा पहुंची है। यूरिया खाद 1300 से बढ़कर 2200 रुपए की हो चुकी है। पहला मुतालबा कि जो 5 रुपए रेट बिल बिजली पर यूनिट था, आज वो रेट 20 रुपए पे चला गया है। इसको साबका रेट बहाल किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा कि डीएपी खाद जो 2400 रुपए में मिलती थी, आज वो 9000 से ऊपर मिलती है, उसका रेट कम किया जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मजीद कहना था कि काश्तकार बगैर डीएपी के गंदम काश्त कर रहा है। खाद की कीमतें कम ना हुई तो आइंदा साल गंदम का बहरान आएगा। किसानों को नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, पुराना पाकिस्तान ही लौटा दें। हुकूमत किसानों से सस्ती अजनास लेकर अवाम तक कम कीमत में नहीं पहुंचा सकी। कैमरामैन वसीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। जतोई और गिरदनवाह में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। मार्केट से यूरिया खाद गायब हो चुकी है। काश्तकार खाद के हसूल के लिए परेशानी फिरने लगे हैं। जितोई में गंदम की काश्त का मौसम शुरू होते ही खाद माफिया सरगर्म। जितोई और नवाही इलाकों जुग्गीवाला, मीरवाला, कोटला, बंद अली में डीएपी और यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। काश्तकार डीएपी खाद महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि यूरिया खाद का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मार्केट में यूरिया खाद की कीमत 2400 से 25 रुपए फी बोरी तक पहुँच चुकी है। खाद ना मिलने की वजह से परेशान किसानों का कहना है कि इन हालात में गंदम की फसल मुतासिर होने का खतरा है। हुकूमत नोटिस ले। खाद लुका दी ने, सब खाद नहीं मिलती, सब खाद चाहिए देने तो 2200 रुपए थे बोरी देने। अच्छा परेशान हूँ तो सब खाद चाहिए, खाद नहीं मिल रही। खाद की बहुत परेशान है से हर दुकानदार के लिए खाद लुका दी ने 2200 रेट मंगते हैं, 2300 मंगते हैं। फसल जरिए ना हुण पानी ते आ गई है। काफी दिन थी फसल उकाश की तो है। बराए मेहरबानी आला हुकाम जरा खाद सकूं मुहैया करे। पानी लाने जमीन सुखती पी, अगर खाद दे बगैर पानी ले राडू तो नहीं थी, बस सब खाद देती हो। डीएपी पहले आई था जना सर हमारे पियो हूं जा रहे डीएपी 9000 से 9500 तेरी थे। तहसील जितोई में खाद के हालिया बहरान की वजह से छोटे बड़े सभी काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। मसनूई बहरान के जिम्मेदार खाद माफिया के खिलाफ अमली कार्रवाइयां करें। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जितोई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान में महंगाई के खिलाफ ठेकेदार भी एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में होने वाले टेंडर्स का ठेकेदारों ने बॉयकॉट कर एहतजाज किया है। महंगाई के खिलाफ बाइकआउट, महंगाई के खिलाफ टेंडर का बाइकआउट रहेगा। डेरा गाजी खान में बढ़ती महंगाई से ठेकेदार भी परेशान हैं। तामीराती मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ ठेकेदार भी मैदान में आ गए। ठेकेदारों ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में होने वाले टेंडर का बाइकआउट करके महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन की तरफ से महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हमारा रेट रिवाइज नहीं होता, हम हर टेंडर का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है। इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम जो है ना कोई काम करने के काबिल नहीं है। सबका जो काम हमारे चल रहे हैं उनके हमारे रेट रिवाइज किए जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कई गुना तक इजाफा हो चुका है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मुकम्मल करना मुश्किल हो चुका है। जैसे कि मार्केट के अंदर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं और ये इंतहाई तबाही के दहाने पे पहुंच गई हैं फर्में। मार्केट रेट एकदम 50% से अबव हो गए हैं, तो ऐसे इसमें काम तो नहीं कर सकते। ठेकेदारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत उनको रिलीफ फराहम करे ताकि जारी मंसूबाजात जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। क्या भाई आपको बताएं, मुल्तान शहर में तजावुजात की भरमार है और इंतजामिया इस पर कुछ न कर पाए। शहर को तजावुजात से पाक करने के हुकूमती दावे भी धरे के धरे रह गए।
तजावजात माफिया ने शहर ओलिया में पंजे गाड़ लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तजावजात माफिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। शहरी कहते हैं कि कॉरपोरेशन के एहलकार आते हैं तो या इधर उधर हो जाते हैं। इन लोगों को इंतजामिया संभाल नहीं पा रही। निश्तर रोड पर तजावजात के बायस कई बार एम्बुलेंस ताखीर का शिकार होती है। लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, गरीब लोग जाते हैं, कोई ड्यूटी पे जाते हैं, कोई कैसे जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि ये जो रिक्शे वाले या रेडियो वाले हैं इनको अलहदा जगह दे दी जाए, तो ये जो रोज का मामूल बन चुका है ट्रैफिक जाम का, तो ये खत्म हो जाएगा। शहरियों का कहना था कि कारपोरेशन को तजावजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत इन लोगों के लिए अलग जगह मखसूस करके जहां ये अपनी रेडी लगा सकें ताकि इनका कारोबार भी मुतासर न हो। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बल्दिया इंतजामिया की नाअहली मुजफ्फरगढ़ के गुंजानेबाद इलाके कब्जा माफिया के निरखे में आ चुके हैं। जा बजा तजावजात की भरमार है, जबकि शहरी अजियत से दो चार हैं। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी तजावजात माफिया का राज बरकरार है। शहरियों का कहना है कि सबसे ज्यादा मसला दानिश स्कूल के अतराफ है, जहां रेढ़ी बानों और रिक्शा माफिया का कब्जा है। उनका कहना है कि गुंजानाबाद इलाकों, कचहरी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड और झंग मोड़ चौक पर तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। हम इधर के रहने वाले हैं, डेली आना जाना है हमारा, पैदल को क्या मोटरसाइकिल का कोई भी बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता, ठीक है ना। या कोई मरीज बंदा आ जाए या कोई भी आ जाए यहाँ से, या कोई दूर से आ जाए, वो रास्ता भी भूल जाएगा अपना। इधर तजावजात है और कचरा भी है शहर में, पता नहीं क्या कर रही है हुकूमत यहाँ पे। शहरियों का कहना है कि कई बार दरखास्तों के बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया टस से मस नहीं हुई, जबकि स्कूलों में छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो इस वक्त हम आधा घंटा पहले इधर आए हुए हैं, और ये जो रेडियो वाले ठहरे हैं ना, इनकी वजह से हम बहुत तंग हो जाते हैं कि बच्चे हम लेने भी नहीं जा सकते, और वापसी पे भी जब जाते हैं तो कम से कम 20-25 मिनट हमको लग जाते हैं यहाँ से निकलते हुए। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पर और मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 20 में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया गया है। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती काम होंगे। मुल्तान में तरक्याती कामों का आगाज। शाहरुख ने आलम कॉलोनी यूनियन काउंसिल 20 में सीवरेज मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी ने फीता काट कर मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे से दौलत गेट, के ब्लॉक, शाहरुख ने आलम कॉलोनी, मुश्ताक कॉलोनी और गुलबर्ग कॉलोनी के सीवरेज मसाइल हल होंगे। नदीम कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि मंसूबा 15 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीवरेज का ये मंसूबा मुकम्मल होने से शहरी इलाकों और मकामी आबादी को बड़ा रिलीफ मिलेगा। चूँकि मुल्तान सीवरेज के मसाइल के हवाले से बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा पिछले 35-40 साल में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ का स्पेशल फंड वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने सिर्फ PP 216 के लिए दिया। मैं ज़ाती तौर पर उनका मशकूर हूँ। तहरीक इंसाफ की सिटी नायब सदर शेख वारी शौकत ने कहा कि महंगाई के जिन को काबू करने के लिए हुकूमत अरबों रुपए का रिलीफ दे रही है। हल्का PP 216 में 25 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। तकरीबन 15 करोड़ रुपए का जो फंड्स है वो सिर्फ सीवरेज के लिए दिया है। उसके बाद रोड्स के फंड्स हैं। ये इस यूनियन काउंसिल में तारीखी इनका इकदाम है कि आज से पहले तक किसी ने ना इस यूनियन काउंसिल पे तवज्जो दी थी और ना इतने तरक्की यहाँ पे काम हुए थे। शाहरुख ने आलम कॉलोनी की आवाम ने सीवरेज का मंसूबा शुरू करने पर हुकूमत की तारीफ की है। साथ ही तरक्याती काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की अपील भी की है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वासिक सरजीस ने ज़िमनी इलेक्शन PP 206 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। बाद में रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। खानेवाल में खाली होने वाली नशिस्त PP 206 में इलेक्शन का बगल बच गया। यह नशिस्त मेंबर सूबाई असम्बली निशात अहमद डाहा के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत अपने उम्मीदवार मीर सैयद वासिक सरजीस के हैदर की सपोर्ट के लिए खानेवाल पहुंची। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर सैयद वासिक सरजीस हैदर का कहना था कि वो जीतेंगे। जिस जमात से पहले इलेक्शन लड़ा, अब भी उसी जमात से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कामयाबी उन्हें मिलेगी, कामयाबी बिलावल को मिलेगी। हम तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी पार्टी में आज भी स्टैंड कर रहे हैं। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो लोग लोटा बनना पसंद नहीं करते, यानी इधर का उम्मीदवार उधर, और खानेवाल शहर में खासकर आजकल ये चीज़ बड़ी
اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی والا امیدوار ادھر آ گیا، نون لیگ میں نون لیگ والا ادھر آ گیا، تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی مرتضی محمود کا کہنا تھا کہ جیتنے کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی بھرپور انتخابی مہم چلائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے یہ الیکشن لڑے گی۔ ہم سب نے آپس میں ذمہ داریاں ڈیوائڈ کی ہیں۔ ہم یونین کاؤنسل وائز ڈور ٹو ڈور وائز جائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے اس حلقے میں گھر گھر جا کے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حیدر زمان قریشی نے کہا کہ مہنگائی بے روزگاری کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ خانیوال کے عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تمام کینڈیڈیٹس کو ایک مساوی فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن یہ جدوجہد حکومتی اثر رسوخ جو ہے ڈیلی کی بنیاد پر ہم نے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ ہم نے کسی طور اس الیکشن کو چرانے نہیں دینا۔ پریس کانفرنس میں خواجہ رضوان عالم، عبد القادر شاہین، نتاشا دولتانہ، راؤ ساجد علی، عثمان محمود، شازیہ عابد، نسیم لابر، سلیم راجہ، چودھری یاسین اور عبد الرؤف لودھی سمیت دیگر رہنما شریک تھے۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ فیسکو سرکل میاں والی لائن مین 1 اور لائن مین 2 کو پروموشن دے دی گئی ہے۔ پروموشن ملنے پر ورکرز نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ فیسکو سرکل میاں والی کے ملازمین کے لیے اچھی خبر، 43 لائن مین 1 اور 55 لائن مین 2 کو ترقی دے دی گئی۔ ایسی فیسکو سرکل میاں والی اصغر خان قزلباش کا کہنا تھا کہ لائنوں پر کام کرنے والے ورکر کی ایک لاٹ تیار ہو گئی ہے۔ ورکر کی پروموشن سے لائنوں پر پیدا ہونے والے مسائل کو جلد حل کیا جا سکے گا۔ ہماری ایک لاٹ نئی انٹر ہو گئی ہے جو لائنوں پہ اور کھمبوں پہ کام کر سکے گی۔ ہم نے 43 اسسٹنٹ لائن مینز کو پروموٹ کر کے ان کو لائن مین سیکنڈ بنایا ہے اور 55 لائن مین سیکنڈ کو پروموٹ کر کے ہم نے ایل ایم فرسٹ بنایا ہے۔ فیسکو کی ترقی پانے والے ورکرز نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی اصغر خان قزلباش کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بورڈ بلا کر ورکرز کو ان کا حق دلایا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں فیسکو سرکل میاں والی کے انچارج ایسی جناب اصغر خان قزلباش صاحب کہ انہوں نے بورڈ کو فی الفور ترتیب دیا ہے اور جو بندے میاں والی سرکل کے پروموٹ ہونے والے تھے، جتنے لوگوں نے یہاں پر انٹرویو دیا ان سب کی پروموشن کے لیے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم تمام لائن مین مشکور ہیں جناب سپرنٹینڈنگ انجینئر خان اصغر حسین قزلباش صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں لائن مین سیکنڈ سے لائن مین فرسٹ پروموٹ کر دیا۔ ہم بہت خوش ہیں، ہماری پروموشن ہو گئی ہے۔ ترقی ملنے پر لائن مین 1 کو اسکیل 7 سے 9 اور لائن مین 2 کو اسکیل 9 سے 11 دے دیا گیا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اب کسان ہوں گے مالا مال، 1 ایکڑ سے کسان لاکھ روپے منافع کما سکیں گے۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب عتیل کہتے ہیں کہ ایک کھیت میں 7 سبزیاں اور 5 پھل اکٹھے اگانے کا تجربہ کیا جو کہ کامیاب رہا۔ جنوبی پنجاب کے کسانوں کے لیے اچھی خبر، کپاس اور گندم کی روایتی فصلوں تک محدود رہنے کی بات اب ہو گئی پرانی۔ اب ایک کھیت میں کئی سبزیاں اور پھل اکٹھے اگائے جا سکیں گے جس سے ماہانہ لاکھوں روپے کمائے جائیں گے۔ ہم نے اس طرح یہ ماڈل ایک متعارف کرا رہے ہیں جس میں 1 ایکڑ پر ہم کوئی 8 پودے لگا رہے ہیں اور 5 سبزیاں اس وقت لگا رہے ہیں، اور اس کو اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد کاشتکار کو کوئی نہ کوئی سبزی، کوئی نہ کوئی فروٹ ملے۔ اگلے 2 سال میں یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب کا کہنا ہے کہ ایک کھیت میں یہ فصلیں بغیر کھاد کے اگانے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اب صاف پانی کی کیمیکل کے بغیر سبزیاں اور پھل کھانے کو ملیں گے۔ کھاد کا اس میں کھاد اور پیسٹی سائڈ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کمپوسٹ ہم نے شروع میں بنایا ہے جس کے ذریعے پانی گزرے گا تو وہ کمپوسٹ کے اندر سے اپنی پوری ضروریات لے کے نیوٹریشن لے کے آگے گزرے گا۔ سیکرٹری زراعت ثاقب عتیل جنوبی پنجاب کے کسانوں کو نت نئے تجربات اور آئیڈیاز کے ساتھ جدید فارمنگ کی طرف لانا چاہ رہے ہیں جو کہ خوش آئند عمل ہے۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ ناظرین ابھی آپ کو بتائیں میاں والی صنعتزار میں تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ادارت سے ٹیلرنگ، بیوٹیشن، کمپیوٹر اور دیگر کورسز مکمل کرنے والی خواتین میں اسناد تقسیم کی گئے۔ میاں والی میں صنعتدار خواتین کو ہنرمند بنانے میں پیش ادارے میں کورسز کرنے والی خواتین میں اسناد تقسیم کرنے کے لیے تقریب سجائی گئی۔ چیئرمین کیمو کمیٹی برائے دفاع MNA امجد علی خان نے ہنرمند خواتین میں اسناد تقسیم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے وظائف میں اضافہ کیا جائے گا۔ عشرہ اختر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک گاڑی کے دونوں پہیے کام نہ کریں۔ تو ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں جب تک معاشرے کا فعال میں سمجھتا ہوں ان کا کردار نہیں ہوگا اس وقت ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔
डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फातिमा अहमद ने तकरीब के शुरका को बताया कि खवातीन को 4 कोर्सेज कराए गए हैं और मुस्तहिक खवातीन को सिलाई मशीनें भी दी गई हैं ताकि वो बाइज्जत रोजगार कमा सकें। 21 तालिबात जो हैं उन्होंने अपना डोमेस्टिक टेलरिंग, हैंड मशीन एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर कोर्स में असनाद हासिल किए हैं। और इसके अलावा जो हमारी मुस्तहिक तालिबात थी उनको हमने मशीनें प्रोवाइड की हैं ताकि वो अपने घर बैठ के बाइज्जत रोजगार कमा सकें। संतदार से कंप्यूटर कोर्सेज करने वाली तलबा का कहना था कि कोर्स मुकम्मल होने पर वो बहुत खुश हैं। मैंने सनतदार से कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है। मैम फातिमा उन्होंने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी हैं ताकि हम उनको अवेल करें। हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट में मैम ने हमें ट्रेन किया है। मियां वाली के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद हुसनैन शाह, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद और चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी जुबैर सईद एडवोकेट भी तकरीब में मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का अहम इकदाम, पहली इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशन का एहतमाम। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान 100 से जायद मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशंस के दौरान रिसर्चर्स ने स्पेशल एजुकेशन की बढ़ती हुई अहमियत और इसके मुस्तकबिल बारे सिफारिशात मुरतब की। कॉन्फ्रेंस में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए स्पेशल एजुकेशन नजीर अहमद बलोच ने खसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि हुकूमत स्पेशल एजुकेशन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। हमारी गवर्नमेंट ने तरजीहन इस डिपार्टमेंट पे पहले भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम स्पेशल बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड ले आना, इनकी तालीम और तरबियत के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इन लोगों की कामयाबी के लिए, इनको पाकिस्तान का एक मुस्बत और कामयाब शहरी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने तमाम तरजीहात तय की हुई हैं। स्पेशल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पंजाब यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च डॉक्टर रफाकत अली अकबर ने की। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से स्पेशल एजुकेशन को एक नई जहत मिली है। भावलपुर के शोबा स्पेशल एजुकेशन ने ये जो स्पेशल नीड्स पर रिसर्च कॉन्फ्रेंस की है, ये मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है, इसलिए कि जनूबी पंजाब में इस तरह की सरगर्मी नहीं हो रही थी और हमारे यहाँ जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं उनकी ज़रूरतों को केटर करने के लिए तहकीक की जो ज़रूरत है, स्पेशल एजुकेशन ने उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये कोशिश की है और इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अतर महबूब ने इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की और शुरका में एजाजी शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रूही, भावलपुर। मुल्क को करप्शन से पाक करने का आज़म नैब के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में तकरीरी मुकाबलों की तकरीब सजाई गई है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। नैब के ज़ेरे एहतमाम करप्शन को मुल्क से पाक करने के लिए सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के माबैन गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की जानिब से अपनी तकरीर के जरिए करप्शन से होने वाले नुकसानात और इसकी रोकथाम के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। जनाब सदर, अगर हम कुरान मजीद की ये बात मान ले, तो जिंदगी के बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे और ये दुनिया जन्नत का नमूना बनती चली जाएगी, क्योंकि अच्छे अमाल का ताल्लुक सच्चाई, ईमानदारी, सखावत और इंसाफ पसंदी से है। तकरीब की मेहमान खुसूसी तकरीरी मुकाबले की फोकल पर्सन सुल्ताना असलम राना थी। इनका कहना था कि मुकाबलों के इनेकाद का मकसद करप्शन एक लानत है जिसके बारे में बच्चों को शऊर देना है। यहाँ भी छोटी छोटी कहीं गलतियाँ हैं, कहीं कोताहियाँ हैं, उनको हमने नई जनरेशन को, जो कि हमारी अगली नस्ल और अगला असासा है, उनके जहनों में ये बात डालनी है कि अगर हमें सेहतमंद जहन और सेहतमंद माशरा कायम करना है तो हमें हर तरह की करप्शन से पाक करना होगा। प्राइमरी सेक्शन से आसिया गुल की पहली पोजीशन, दूसरी अदीना मरियम और तीसरी पोजीशन मरियम फहीम ने हासिल की, जबकि सेकेंडरी सेक्शन से पहली पोजीशन मोहम्मद मुनीब ने ली, दूसरी जैनब रफीक ने और तीसरी पोजीशन नूर फातिमा ने हासिल की। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।